Hello children, we were studying the preamble of the Constitution. Some preamble of the Constitutions are: we the people of India, sovereign state, socialist state, secular state, democratic state, republic state, and social justice. Now today we start another preamble of the Constitution. So here is economic justice, political justice, freedom of thought, expression, belief, faith and worship, equal opportunities to all round development, unity and integrity, brotherhood. These are the preamble of our Constitution. So let's start economic justice. All the citizens of India possesses economic freedom. The government is committed to uplift the economically backward classes. Special programs and policies are framed for the welfare of the economically backward people and areas. The employment guarantee programs in the rural areas is a step in this direction. Now, political justice. India is a democratic country. All the citizens have the right to express their thoughts, to vote and to take part in the election process. Freedom of thought, expression, belief, faith and worship. All the citizens have the freedom of form their own religious and political views and to express them. All the citizens have the freedom to follow their own religion and to practice and propagate their religion. The state does not interfere in religious matters. Equal opportunities to all. Equality implies equal opportunities and scope for all citizens for their all-round development in education and government jobs. The practice of untouchability is a constitutional offense. All-round development. All the citizens of India are provided equal opportunity for the all-round development of their personality, unity and integrity. India is a federal state. The Constitution clearly states that no state can segregate itself from the Indian Union. The Indian citizens have only one citizenship, that is of Indian Union. Our national objective is to maintain the spirit of unity and oneness. Now, brotherhood. Brotherhood is essential for the national unity, integrity and development. It is necessary to promote the feeling of brotherhood and oneness among all castes, languages, states and classes. The preamble of Constitution is a document which upholds the heights, goals and is a source of inspiration for development. So students, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या यहाँ पर लोगों को करना होगा, क्या क्या भावना के साथ यहाँ रहना होगा, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं. तो पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के नागरिक हैं. देन नेक्स्ट सोवरेन स्टेट मीन्स संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है हमारा देश जो है, बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट है, किसी का उसमें कोई दूसरा देश जो है वो उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, वो किसी का वो गुलाम नहीं है, किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है. सोशलिस्टिक स्टेट, हमारा देश जो है वो समाजवादी देश है. सेक्युलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है. फिर है डेमोक्रेटिक स्टेट, लोकतंत्रात्मक है. ये हमारा देश जो है वो लोकतंत्र वाला स्टेट है, वहाँ लोगों द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुनकर शासन किया जाता है. देन रिपब्लिक स्टेट मीन्स गणराज्य, हमारा देश एक गणराज्य है. गणराज्य मीन्स हमारा जो मेन फर्स्ट पर्सन है, जो प्रेसिडेंट है, उसे
हेरिडेटरी ना हो करके वह इलेक्ट किया जाता है, उसे पब्लिक इलेक्ट करती है और तब वो बनता है इतने ऊंचे पद पर, प्रथम जो कहना चाहिए नागरिक के पद पर राष्ट्रपति तब होता है जब उसे जनता चुनकर भेजती है। एक्चुअली में जो पब्लिक है वो बाकी के जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो प्राइम मिनिस्टर उनको चुनती है, और फिर वो जो सारे पार्लियामेंट के जो मेन मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट में होते हैं वही फिर अपना प्रेसिडेंट को का चुनाव करते हैं। नाउ सोशल जस्टिस, तो हमारा जो देश है उसमें न्याय होता है, सामाजिक न्याय है हमारे देश में, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। इकोनॉमिक जस्टिस, हमारे देश में आर्थिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार अर्निंग कर सकता है और उसे किसी दूसरे के अंडर में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो पिछड़े लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज चलाकर इकोनॉमिक जस्टिस किया जाता है। नाउ पॉलिटिकल जस्टिस, हमारे देश में पॉलिटिकल जस्टिस का भी अधिकार सभी को है। हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है वहाँ पर, और बिना किसी भेदभाव के अपना लोग विचार प्रकट कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हमारे देश में सभी को अपने अपने विचार रखने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, वो किस पर विश्वास करते हैं, किस रिलीजन को मानेंगे, किस धर्म को मानेंगे, किस व्यक्ति को मानेंगे, किस पर विश्वास करेंगे, ये सारी चीज़ों की फ्रीडम है, किसी का भी उन पर कंट्रोल नहीं है, कोई दबाव नहीं होता। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, कहीं भी हो, किसी भी सेक्टर में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, ऐसा हमारा संविधान कहता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, हमारे संविधान के अनुसार जो हमारा देश है उसका चारों ओर विकास करना होगा, हर क्षेत्र में उसका विकास करना होगा, और जो पर्सन्स हैं उनका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जरूरी है ताकि देश का विकास हो सके। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देन हमारे देश की एकता और अखंडता, ये दो चीजें जो हैं, जो हमारा देश है वो एक फेडरल स्टेट है, मीन्स संघीय राज्य है, और हमारा देश आपस में एकजुट है, कोई उसे अलग नहीं कर सकता। संविधान जो हमारा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। हमारा भारत जो है इसमें सिटीजनशिप जो है वह वन सिटीजनशिप है, मतलब कि एकहरी नागरिकता कहलाएगी, वो एकहरी नागरिकता है, और जो हमारा देश है वो अखंड है, कोई भी विघटनकारी लोग होंगे जो वो हमारे देश को डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। नाउ ब्रदरहुड, और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में भाईचारा है, ब्रदरहुड है। ब्रदरहुड जो है वो नेशनल यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भाईचारा है उसे प्रमोट करने के लिए, भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए, चाहे वो कास्ट हो, लैंग्वेज हो, स्टेट हो, क्लास हो, किसी भी रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमारा जो संविधान है वह यह कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है विच अपलोड्स द हाईएस्ट गोल्स, जो कि हाईएस्ट गोल्स को अपलोड करता है, मतलब ऊंचे से ऊंचे विचारों को, ऊंचे से ऊंचे एम्स को, उद्देश्यों को पाता है, एंड इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर, और जो डेवलपमेंट की भावनाएं हैं उसको इंस्पायर करता है, ताकि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक डेवलपमेंट कर सके और सभी फ्रीली हमारे देश में रह सके। नाउ मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is the way of life that the state has chosen for itself. The Constitution is made according to the need of the country and it has some special features. The main features of the Indian Constitution are as follow. अब हमारा जो भारत है उसके कुछ मेन, हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ मेन फीचर्स हैं जो कि आगे बताए गए हैं। फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, second detailed and comprehensive constitution, third rigid and flexible, inclusion of fundamental rights and duties, then the incorporation of directive principle of the state policy, federal feature, democratic republic, parliamentary system,
secular state, sovereign republic. These are the some characteristics, some features of the Indian Constitution. We will study about them in the next video.